So welcome students once again in the class of multimedia and animation technology. So Photoshop आप already start कर चुके हैं, काफी सारे tools भी देख चुके हैं and जो आज आप tool देखांगे that is healing tool, ठीक है ना? healing tool दे बारे आज गल करांगे. So ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸੋ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਓਕੇ ਸੋ ਨਾਓ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ. एंड इत्थे मैनू सिर्फ आ वाला हिस्सा चाहिए, मैनू आ हिस्सा नहीं चाहिए क्योंकि आप इसे दे उपर काम करना है. सो मैं इसनू सिंपली जो मेरा क्रॉप टूल है, सो मैं क्रॉप टूल दे नाल इसनू क्रॉप कर लेना. सो दिस इज माय क्रॉप टूल एंड मैं जिहड़ा मेरा पोर्शन है जिन्ना जिन्ना मैनू चाहिए मैं उन्ना उन्ना इसनू की कर लेना, मैं क्रॉप कर लाइक I think this is slice tool बन गया है अपने को. Just a second. So जिन्ना पर हिस्सा चाहिए इस दे विचों आपां उन्ना हिस्सा इत्थों ले सकते हैं like this. ओके सो साइड पे कुछ आ गया अपने को एजेस, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ इसनू ਆਪਾਂ सेव भी कर लेने. सो PSD फॉर्मेट में सेव कर लेना. स्टूडेंट्स PSD फॉर्मेट फोटोशॉप ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ JPG ਜਾਂ PNG ਜਾਂ BMP ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PSD ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਸੋ ਓਕੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਟੂਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਟੂਲ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਪੌਟ ਹੀਲਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਐਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ਸ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੀਲਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੀਲਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਪ ਟੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ we need to define a source. So source ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, अगर सोर्स नहीं डिफाइन करते तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗਾ, alt ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ alt ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ
एंड उस तो बाद कोई आस-पास का अगर तुहानू हीलिंग चाहिए तो तुसी उदां दी हीलिंग उत्थे करा सकते हो, ठीक है ना। सो वो ऑटोमैटिकली तुहानू हीलिंग करके देगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहुंदा कि मैं इत्थे कुछ हीलिंग करा तो मैं इत्थे हीलिंग कर सकदा। सो एल्ट लाइक इत्थे प्रेस कीता तो इत्थे ऑटोमैटिकली हील कर देगा। सो हीलिंग टूल का काम की है राजे कि आस-पास दे जो उसके पिक्सल्स ने, आस-पास दियां जो एरिया ने इमेज दा, उत्थों वो कुछ ना कुछ कंटेंट पिक करके जिथे तुहानू थोड़ा कोई पॉइंट है जिथे तुसी हीलिंग लगाना चाहुंदे हो, रिपेयर करना चाहुंदे हो, वो उत्थे वो उस पिक्सल्स नू उन्हां कलर्स नू फिल कर देगा। सो ये हीलिंग टूल का काम है। सो मैं हुण तुहानू थोड़ा जिहा करके दिखा दिंदा इसदे विच। लाइक एल्ट मैं प्रेस किया होया एंड माउस की मैं लैफ्ट क्लिक करके एक सोर्स डिफाइन कर लिया, मैं कित्थों पिक करना चाहुंदा एंड उस तो बाद मैं जिथे हील करना चाहुंदा मैं उत्थे जाके क्लिक करदा। सो देखो तुसी इत्थे मेरा जिहड़ा स्पॉट सी वो मेरा की हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। सो मैं थोड़ा होर जूम करदा। सो लाइक अगर मैं हीलिंग टूल पे वापस जाना, ठीक है। सो हीलिंग टूल इज दिस एंड इसका जस्ट अ सेकंड एंड उस तो बाद इसमें तुसी साइज ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कंट्रोल कर सकते हो। लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे साइज रिड्यूस हो जाएगा, राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड उस तो बाद फिर अगेन ਤੁਸੀਂ एल्ट प्रेस करके ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ हीलिंग लगा सकते हो, ठीक है। सो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ हीलिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ कर सकते हो। सो सोर्स डिफाइन कर सकते हो एंड उत्थे सोर्स के अकॉर्डिंगली फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, हीलिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। लाइक दिस। सो ये अपने आप इत्थे की करेगा, हीलिंग कर, ठीक है। नाउ उस तो बाद ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ठीक है। नाउ उस तो बाद ये है अपना हीलिंग टूल, ठीक है ना, सिंपल हीलिंग टूल। सो हीलिंग ब्रश, ओके। नाउ इस तो बाद अपने कोल की आ जाता है, इस तो बाद अपने कोल आ जाता है स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग दे विच की हुंदा है, स्पॉट हीलिंग दे विच तुहानू की करदा है वो कंटेंट अवेयर करके ऑटोमैटिकली की करदा हैगा, ठीक है। सो अपने आप ही ये करदा, इससे सानू सोर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पैंदी, लाइक दिस सिंपल, ठीक है। सो इत्थे तुसी की कर सकदे हो। सो इत्थे मैं एक चीज़ होर इत्थे तुसी देखोगे ध्यान नाल कि मैं करन दी कोशिश कर रहा बट मेरे कोल नहीं हो रहा। कारण उसका ये है कि मैं लेयर 1 के उपर काम कर रहा, जो लेयर मेरी ब्लैंक लेयर है एंड जो मेरा पैटर्न है, जो मेरा जो मैं टैक्सचर पिक करवाना चाहुंदा वो मैं लेयर 0 तो पिक करवाना चाहुंदा। इस करके मैनू आ वाली जिहड़ी ऑप्शन है सैंपल ऑल लेयर सिलेक्ट करनी पऊगी ताकि जिहड़ा मेरा सैंपल है वो हर एक उस लेयर तो सिलेक्ट हो जाए जो इस पूरे लेयर वाले मॉड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਵਨ ਦੋ ਬਲੈਂਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੌਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਪੌਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बस ये याद रखियो कि ਜਿਹੜੇ ब्रशिस ने ये सिर्फ ਉੱਥੇ काम करते हैं ज़्यादातर जिथे थोड़ा काम थोड़ा हो, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा रीस्टोरेशन है तो तुसी उत्थे इन्हां चीज़ां नूं ज़्यादा यूज नहीं कर पाओ, लाइक दिस, ठीक है ना। सो ये देखो तुसी ऑटोमैटिकली इस चीज़ नूं काम कर रहा हैगा बट कई जगह ते ना साडे कोल जदों इसनूं असीं ब्रश नूं यूज करदे हां तां उपर साडे कोल आ चीज़ां निकल जांदियां ने। तुसी देखोगे इत्थे एजेस उपर आ रहे ने, इसनूं तुसी कंट्रोल कर सकदे हो। किद्दां कंट्रोल कर सकदे हो, थोड़ा जूम करो एंड वापस तो तुसी स्टैंप टूल ले लो। स्टैंप टूल थोड़ा काफ़ी साइज वड्डा है, इत्थे हुण मैं छोटा कर लेना। सो स्टैंप टूल इत्थे साडे कोल काम करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला अगेन एल्ट तुसी जिहड़ा एल्ट है वो सोर्स डिफाइन करो। एल्ट भी हमेशा याद रखना, एल्ट भी लैफ्ट क्लिक वाला करना, एल्ट दूसरा नहीं क्लिक करना, ठीक है। सो इनू हल्का हल्का तुसी इत्थों साइड तो जो है इसनूं रिमूव कर सकते हो। सो देखोगे इत्थे ठीक हो गया थोड़ा जिहा। वापस फिर तुसी हीलिंग टूल ते आओगे, ठीक है ना। सो हीलिंग टूल है स्पॉट हीलिंग तुसी यूज करके इत्थे जिहड़ा है तुसी हील कर सकते हो जिहड़े स्पॉट्स तुहानूं लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस आल्सो, ठीक है, ये भी अपन लग रहा थोड़ा जिहा एंड उस तो बाद फिर थोड़े कोल जिवें लाइक दिस आ वाला स्पॉट है थोड़े कोल, ठीक है। सो इनू तुसी इत्थों मर जिहड़ा भी थोड़े कोल तुहानूं स्पॉट दिखदा है जो तुहानूं लग रहा है कि इमेज खराब हुई है जिथे उन्हां स्पॉट्स नूं तुसी इस टूल दे नाल की कर सकदे हो, इस दे नाल काफ़ी हद तक इसनूं हैंडल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ओके। सो या सो इस तो बाद सो मैं इसनूं ज़्यादा नहीं करूँगा, बाकी मैं थोड़े ते छड्ड रहा, तुसी इसनूं कंप्लीट कर लियो, ठीक है। सो
ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੀਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਪੌਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂਲ ਦੀ, ਜੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। बेसिकली लै तो तुम फोटो कोई भी सकते हो, बट मेरा एक थोड़ा जिहा पर्टिकुलर इंटरस्ट है कि एक फोटोग्राफ इदां दी लई जावे जिहदा बैकग्राउंड काफ़ी वाइड होवे, जिहदे विच सेम कलर की जो टोन है वो ज़्यादा होवे, ठीक है ना। ओके, सो लेट अस गो फॉर द रैंडम पिक्चर। कुछ रैंडम पिक्चर आप पिक कर दें। ओके, सो लेट्स से आप फोटो डाउनलोड कर लेने, ठीक है। इसके ऊपर काम करके देखते हैं। वंस अगेन टूल जो आप कर रहे हैं दैट इज कंटेंट अवेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो आप चीज कर रहे हैं दैट इज कंटेंट अवेयर। नाउ इसनू वापस तो मैं क्लोज कर देना, सेव कर लेना, ठीक है। एंड हुण मैं फाइल ओपन करदा नवी। सो इत्थे मेरे को जो मैं फाइल सेव की सी कंटेंट अवेयर। ओके, नाउ देखो कंटेंट अवेयर की चीज़ है। सो कंटेंट अवेयर के बारे में थोनू जो इत्थे दसना चाहांगा वो ये है, फॉर एग्जांपल मैं इत्थे लैसो टूल नू सिलेक्ट किया एंड लैसो टूल दे नाल मैं इसनू की कीता सिलेक्ट कर लिया इन एक पोर्शन, ठीक है। नाउ उस तो बाद मैं शिफ्ट ते बैक स्पेस नू प्रेस किया। शिफ्ट ते बैक स्पेस नू प्रेस करते हुए अपने कोल कुछ ऑप्शंस आ जाते, ठीक है। जिवें आपां नू पता कि कंट्रोल बैक स्पेस ते एल्ट बैक स्पेस जिहड़ियां ऑप्शंस आपां यूज करते हैं जो आपां फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर्स नू फिल करना हुंदा, उदां ही शिफ्ट ते बैक स्पेस, शिफ्ट ते बैक स्पेस नू प्रेस करके। सो प्लीज मैं बार बार फोकस कर दांगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਐਂਡ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਰ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ठीक है, या मैं कोई होर कलर फिल करना चाहा मैं वो भी फिल कर सकता। एंड इस दे विच एक ऑप्शन आउंदी है कंटेंट अवेयर। सो कंटेंट अवेयर का मतलब की है, जो मैं इसमें ओके करदा, ठीक है, तो तुसी देखोगे कि इथों ऑटोमैटिकली जो मेरा बर्ड सी वो की हो चुका है, इथों रिमूव हो चुके, ठीक है ना। तो जो मेरा बर्ड सी वो ऑटोमैटिकली की हो चुका है, रिमूव हो चुका है। हल्का जिहा इत्थे मैनूं इफैक्ट जरूर दिख रहा है, इत्थे भी कुछ इत्थे होया हैगा, बट उसनूं मैं स्टैंपिंग टूल दे नाल या हीलिंग टूल दे नाल मैं थोड़ा बहुता काम करके इसनूं हैंडल कर सकदा। बट हुण तुसीं इत्थे देखोगे कि कंटेंट अवेयर दा मतलब की है। कंटेंट अवेयर दा मतलब ये है कि अगर तुसीं किसी भी ऑब्जेक्ट नूं सिलेक्ट कीता है यूजिंग लैसो टूल या एनी अदर सिलेक्शन टूल, तां सिलेक्ट करन तो बाद उस तो बाद अगर तुसीं उस पर्टिकुलर एरिया नूं किसी आस-पास दे एरिया तो फिल करना चाहुंदे हो, तुसीं चाहुंदे हो कि उसनूं एक तरह नाल डिलीट कीता जावे, एक तरह नाल रिमूव कर दिता जावे, ते उस रिमूव किए हुए स्पॉट के उपर अगर तुसीं चाहुंदे हो कि आस-पास का कोई बैकग्राउंड फिल होवे, क्योंकि अगर फिल होऊगा तां ही सानूं इदां लगूगा कि उत्थे ऑब्जेक्ट कदे भी नहीं सी, ठीक है ना। सो वो कौन काम करदा है, वो कंटेंट अवेयर वो काम करदा है। कंटेंट अवेयर आस-पास दी इंफॉर्मेशन लैके उस पर्टिकुलर एरिया नूं जिसनूं तुसीं सिलेक्ट कीता है उसनूं वो की कर दिंदा है, फिल कर। सो एक कंटेंट अवेयर दा काम। ओके, नाउ नैक्सट अपने कोल इत्थे कुछ ऑप्शंस आ जांदियां ने जो आपां हीलिंग टूल देखिया सी। हीलिंग टूल दे विच अपने कोल एक पैच टूल आ जांदा है, ठीक है, लाइक दिस। सो इस दे विच असीं की कर सकदे हां, जिवें आ साडे कोल पैच टूल है, इसनूं असीं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
एंड उस तो बाद की है अगर तुसी इसनों की करना चाहो, ठीक है, लाइक मैं इसनों सीधा इथों रिमूव किया, ठीक है ना, मैं इथों इसनों अगर मैं ये चाहनागा कि जिहड़ा मेरा ये बर्ड सी जिन्नी मैं लोकेशन सिलेक्ट की है, अगर उस जगह के उपर आस पास का कोई एरिया मेरे को आ जाए तो मैं की कर सकदा, मैं उत्थे पैच लगा सकदा, ठीक है। सो पैच किवें लगेगा मैं दोबारा दस रहा इत्थे। सो पैच लगाउण दे लई की करना है, जिहड़ा तुहाडा हीलिंग टूल सी उस ते जाके माउस की राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन आ जाती है पैच टूल, इसनों सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने तो बाद जिहड़ा एरिया तुसीं चाहुंदे हो कि जिथे तुसीं पैच लगाउणा चाहुंदे हो, कोई होर जगह का पैच लगाउणा चाहुंदे हो तां तुसीं उस एरिया नूं सिलेक्ट कर लो। हमेशा याद रखियो जदों कंटेंट अवेयर दे विच काम करना है या कंटेंट अवेयर दी जो बेनिफिट तुसीं लैणा गा तां उत्थे ना जिहड़ी भी सिलेक्शन करनी है उत्थे रफ सिलेक्शन करनी है, मतलब बहुत बहुत प्रिसाइजली सिलेक्शन नहीं करनी कि आस पास के पूरे फैदर भी सिलेक्ट कर ले एंड उस तो बाद प्रॉपर बर्ड सिलेक्ट कर लिया, नहीं, बस तुसीं जस्ट एक रफ जी सिलेक्शन बना लो। एंड उस तो बाद हुण किस तो बाद की करना है, जदों ये सिलेक्शन बन गई उस तो बाद माउस की जिहड़ी लेफ्ट क्लिक है उसनों तुसीं क्लिक करो एंड उसनों होल्ड कर लो। होल्ड करके फिर तुसीं जिहड़ी भी डायरैक्शन ते इसनों ले जाना चाहुंदे हो, जिहड़ी भी डायरैक्शन दा पैच लगाना चाहुंदे हो तां तुसीं उत्थे जाके उसनों की कर सकदे हो, पैच लगा सकदे हो, बस दैट्स इट। सो ये पैच लग सो हालांकि सानूं पता है कि बहुत मतलब चंगा नहीं लग रहा बट ये पैच का बेसिक जो परपज है। देखो ये पैच उत्थे ठीक रहिंदा है जदों तुसीं कोई स्नो वालियां जो फोटोग्राफ रिप्लेस करनियां ने या कोई इहो जी फोटोग्राफ रिप्लेस करनी है या उन्हां फोटोग्राफ दे विच काम करना है जिथे विच टैक्सचर ज्यादा नहीं निकल के आंदा, ठीक है। सो उन्हां दे विच तुसीं काम कर सकदे हो, फॉर एग्जांपल है ना स्नो स्नो फील्ड मैं कह सकदा कुछ है ना, तुसीं अगर उत्थे कुछ करना चाहुंदे हो लाइक दिस, इन्हां जगहां दे उपर अगर तुसीं काम करना चाहुंदे हो तां इन्हां फोटोग्राफ के उपर काम करना चाहुंदे हो तो इत्थे कर सकदे हो, इत्थे कोई ज्यादा दिक्कत वाली गल, ठीक है। सो ये भी चीज़ां वेरी करदियां ने राजे कि केड़ी-केड़ी मतलब केड़ी जगह दे उपर केड़ी फोटोग्राफ दे उपर तुसीं की चीज़ प्लेस करना चाहुंदे हो। फॉर एग्जांपल जिवें आ पोलर बेयर है ना, इस फोटोग्राफ नूं अगर मैं डाउनलोड कर ला लाइक सो पोलर बेयर, नाउ नेक्स्ट अगेन मैं फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं, सो इसके विच फाइल ओपन कर लेने, सो दैट इज पोलर बेयर, ओके। सो हियर इज द फाइल। नाउ इत्थे अगर मैं इसनूं पैच लगावां, ठीक है, सो मैं इस पोलर बेयर नूं इन्ना सिलेक्ट कर लेना, बहुत रफ जी सिलेक्शन की है मैं एंड उस तो बाद अगर मैं इत्थे थोड़ा जिहा इसनूं इत्थे जाके रिप्लेस करा, उस तो बाद कंट्रोल डी करा, देखो इत्थे ऐ लग रहा भी पोलर बेयर कदे मौजूद ही नहीं सी, ठीक है ना। सो इदां मतलब इदां दी चीज़ां तुसीं कर सकदे हो एंड बहुत ही वधिया सिलेक्शन हुई है एंड बहुत ही वधिया रिजल्ट आया, काफ़ी हद तक मतलब आपां नूं ये लग रहा भी ये मतलब कदे इत्थे एग्जिस्ट ही नहीं करदा सी पोलर। सो ये चीज़ां तुसीं कर सकदे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो मैं इत्थे दसना चाहूंगा तुहानूं दैट इज कंटेंट अवेयर मूव टूल, सो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट अवेयर मूव टूल की करदा है, फॉर एग्जांपल इसे फोटोग्राफ के ऊपर आपां काम करदे हां, आपां सिलेक्ट कर लैंदे कंटेंट अवेयर टूल, उस तो बाद मैं इसनूं की कीता, मैं इसनूं लेट्स से सिलेक्ट कर लिया इन्ने पोर्शन, ओके। नाउ नाउ इत्थे तुसीं ऊपर मोड देख रहे हो, इत्थे है मूव, एक है एक्सटेंड, अगर तो मैं एक्सटेंड यूज करदा दैट मीनस मेरे को एक पोलर बेयर 4 बन जाएगा इत्थे एंड नाल दी नाल मेरे को एक ट्रांसफॉर्मेशन दी ऑप्शन आ गई, मतलब मैं उसनूं छोटा वड्डा कर सकदा। सो बट ऑब्वियस है जिहड़ा पोलर बेयर दूर है वो थोड़ा जिहा छोटा भी दिखेगा, ठीक है, थोड़ा जिहा छोटा कर दो एंड उसके बाद इसमें एंटर करो, कंट्रोल डी करो, थोड़े को एक पोलर बेयर आ गया। बाकी जो छोटी मोटी सेटिंग्स ने लाइक जिवें इत्थे स्नो दा जिहड़ा कलर है वो थोड़ा जिहा इहदे नालों अलग है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਪੌਟ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਸਟ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਸਪੌਟ ਹੀਲਿੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਪੌਟ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ सेकंड हीलिंग ब्रश टूल लेने अगर तो तुसीं देखोगे इत्थे ऑटोमैटिकली इसनूं की कर रहा है सिलेक्ट कर रहे, बट थोड़ा थोड़ा देखो ज़्यादा एरिया असीं हील दे नाल नहीं कर पावांगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा अगर तुसीं करना है तो तुहानूं स्टैंपिंग टूल ही यूज करना पऊगा, ठीक है ना, उत्थे तुसीं इसनूं काम कर सकते हो लाइक दिस एंड उस तो बाद तुसीं इसनूं जिवें चाहो तां इसनूं कर सकते हो, ठीक है ना। सो बार बार तुसीं सोर्स डिफाइन करो एंड उस तो बाद इसनूं डिफाइन करो तो ये तुहाडे कोल सारा उदा तुहानूं बना के दे दे, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली गल नहीं है।
थोड़ा जिहा काम करना पएगा डेफिनेटली, ठीक है ना, बट ये थोड़ा कवर अप हो जाए। ओके, सो दैट वाज अबाउट द कंटेंट मूव टूल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਮੂਵ ਟੂਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਨਾਓ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਮੂਵ ਟੂਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਵ ਹੋ ਜੇ, ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪੋਲਰ ਬੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੋਲਰ ਬੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੇਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਮੂਵ ਟੂਲ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, दैट मींस ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਔਨ ਡ੍ਰੌਪ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਨਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਡੀ ਫॉर डेटा, ठीक है, डी ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕਲਰ। ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, दैट मींस ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, दैट मींस ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਥਿੰਕ 7 ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ, 7 ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਲਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗੇਨ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਟੂਲ ਐਂਡ ਦ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਇਰੇਜ਼ਰ ਟੂਲ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗॉट ਦ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਆਫ how the content aware tool works and content aware tool ਦੇ ਵਿੱਚ move tool extend ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ content ਜਿਹੜਾ aware move tool ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ patch tool ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ healing tool ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।